Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of standard 7th. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And student, today we are going to learn about direct proportion and inverse proportion in standard 7 in mathematics subject. So let us see by this presentation. So on your screen there is a direct proportion and inverse proportion. Thereafter we'll see here the direct proportion in this session, and afterwards we will learn about inverse proportion, and thereafter we'll do the practice set 37 and 38. So बच्चों, यहाँ पर आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर जो बात करने जा रहे हैं वो है मुस्तकीम तनासुब और माकूस तनासुब के बारे में। मुस्तकीम तनासुब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे हम आज के सेशन में, और उसके बाद माकूस तनासुब के बारे में, और फिर प्रैक्टिस सेट 37 और 38 यहाँ पर हम हल करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट बाय दिस प्रेजेंटेशन। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब एक मिकदार की कीमत बढ़ने के साथ दूसरे मुताल्लिक़ा मिकदार की कीमत तनासुब में बढ़ती है, और एक मिकदार की कीमत के घटने के साथ दूसरे मुताल्लिक़ा मिकदार की कीमत तनासुब में घटती है, और दोनों मिकदारों की निस्बत मुस्तकिल रहती है, तो वो मुस्तकीम तनासुब की मिसाल होती है। ओके, यू मस्ट remember to this that when the value of one quantity increases with an increase in the proportionate value of another related quantity, and the value of one quantity decreases with a proportionate decreases in the value of the other related quantity, the ratio of two related quantities remain constant, then it is an example of a direct proportion. So here is one example for you. The number of notebooks and the cost of notebooks are given here in this index. So यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्याजों की तादाद दी हुई है और ब्याजों की कीमत दी हुई। If there are 4 number of notebooks, the cost of notebooks will be 20 rupees. If the number of books are 7, then the cost of notebooks will 35. If the number of notebooks are 10, then the cost of the notebooks will be 50 rupees. Okay, if the number of notebooks are 12, then you will see the cost of notebooks will be 60 here. So you just observed here that the cost of notebooks increases with the increase in the number of notebooks, and the ratio of the notebooks to their cost is 1/5, a constant. यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि बयाजों की कीमत, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि बयाजों की कीमत यहाँ पर जो है वो तादाद के बढ़ने के साथ बढ़ती है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह से जो है तो यहाँ पर बयाजों की तादाद और इनकी कीमत की निस्बत जो है तो 1/5 ये जो है तो मुस्तकिल रहती है ना। इस तरह से आपने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ बयाजों की कीमत बयाजों की तादाद के बढ़ने के साथ बढ़ती है, और बयाजों की तादाद इनकी कीमत की निस्बत 1/5 जो है तो ये मुस्तकिल रहती है। यानी ये क्या है, मुस्तकीम तनासुब की एक मिसाल है हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इनकी निस्बत, जैसे आप 4/5 देख रहे हैं, 4/20 है, यानी ये 1/5 की निस्बत है। हर जगह आप देखेंगे जैसे 7/5 है, 7 का 7, 7 पंजे 35, 10 का 10, 10 पंजे 10, 10 पंजे 50, 12 का 12, 12 1 से 12, 12 6, 12
5 is 60. So every time you will get the constant value 1/5 every time. ओके, तो ये जो है तो मुस्तकिल तनासुब है, यहाँ पर हमारे इस तरह से यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर मज़ीद आगे जो है तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर हमें समझना है। ओके, सो हेयर इज़ वन एग्जाम्पल, we see division of a circle made by its diameters, relationship between the numbers of diameters and the number of divisions. So here are A, B and C. Here are the three circles, and you will see here in the first circle, means in a figure A, one diameter makes two parts of the circle, and in the B, two diameter makes the four parts of the circle, and in the third, means in the C, you will see that the four diameter, actually two diameters in B, and in C you will see that there are four diameters in C, make the 8 parts of the circle here. You will see here that this one is 1, this is the second, this is the third, and this is the fourth one. So there are four diameters which creates the four parts, which creates the 8 parts of this circle. You see that 1, 2, 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8. Okay, so like this you observed here that the number of diameters upon number of divisions here. So number of diameter upon number of divisions, so 1/2 means 2/2, and 4/8. So every time you will see the value is here is 1/2 every time. जैसे यहाँ पर आपने देखा एक मुकम्मल दायरा है, इसको जो ये यहाँ पर हमने जब यहाँ पर जो है तो ये कुत्र खींचा तो आपने देखा यहाँ पर कि इसको दो हिस्सों में इसने तकसीम कर दिया इस दायरे को। जब यहाँ पर हमने दो कुत्र खींचे हैं तो आपने देखा यहाँ पर कि ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गया है ये दायरा। ठीक है, जब यहाँ पर हमने 4 कुत्र खींचे हैं तो यहाँ पर ये दायरा जो है तो 8 हिस्सों में तकसीम हो गया है। ठीक है, तो एवरी टाइम अगर आप देखेंगे तो 1/2 का यहाँ पर एक कांस्टेंट जो है तो रेशियो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डायमीटर टू द नंबर ऑफ डिवीजन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है तो ये मुस्तकिम तनासुब हमें नज़र आ रहा है एवरी टाइम। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर मुस्तकिम तनासुब के ताल्लुक से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ताल्लुक से याद रखना है बच्चों। ओके, अभी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द नंबर ऑफ बुक्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल रिसीव्ड इज शोन इन द टेबल बिलो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नगर परिषद के स्कूल में तलबा को मिली हुई बयाजों की तादाद 10 जदुल में दिखाई गई है। जैसे अगर तलबा यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 है तो बयाजें बांटी गई कितनी 90, then 12 72, then 10, then 60, then 5, then 30. So the number of children यानी तलबा की तादाद अगर हम देखते हैं, and the number of notebooks यानी बयाजों की तादाद अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो 15 जो है तो बांटी गई है। 15 बच्चे हैं तो उनको बांटी गई किताबें कितनी, बयाजों की तादाद 90 है। अगर 12 है तो 72, अगर 10 है तो 60, अगर 5 है तो 30। मीन्स एवरी टाइम यू आर ऑब्जर्विंग दैट द रेशियो इज 1/6 एवरी टाइम। इट मीन्स यहाँ पर जो निस्बत है वो 1/6 की निस्बत है जो कि मुस्तकिल है, कांस्टेंट है। सो 1:6 remains the same or constant ratio here. So here is one example for you. So like this we can do many questions. So here's a question number 1 from practice set 37. So on your screen there is a first question from exercise practice set 37. So you will see here
that if 7 kg of onions cost 140 rupees, so how much must we pay for 12 kg onions? यहाँ पर हमें देखना है कि 7 किलोग्राम प्याज 140 रुपए में हो तो 12 किलोग्राम प्याज कितने रुपए में मिलेगी। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, वी आर सपोज टू assume let the cost of 12 kg of onions be x, यानी कि फर्ज किया हमने कि 12 किलोग्राम प्याज की कीमत जो है तो क्या है, x रुपए है। ओके, सो द वेट ऑफ द ओनियन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इससे हमें यहाँ समझ में आता है कि प्याज का वजन और इसकी कीमत जो है तो मुस्तकीम तनासुब में है। ओके, सो 7/140 is equal to 12 upon x. Okay, so you will see that after doing the multiplying both the side by 40x, तरफेन को जो है तो 140x से ज़रब करने पर हमें स्टेप यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/40 इंटू 12 है। तो इसको हम यहाँ पर जो है तो तरफेन को हम यहाँ पर क्या करें हैं, 7x 140x से ज़रब करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे इसके बाद कि डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7, तरफेन को जो है तो 7 से तकसीम करने पर आप देखेंगे इस तरह से हमें यहाँ पर स्टेप मिलेगा। इसे जब हम मुख्तसर करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 7 के साथ 7 दूनी 14 है ना, तो यहाँ पर मिलेगा 20 इंटू 12, तो x इज इक्वल टू 240। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कुल जो है जो प्याज है 12 किलोग्राम प्याज है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 240 रुपये देने होंगे, है ना। वी पे 240 रुपीज़ फॉर 12 kg ऑफ ऑनियंस। ठीक है, इस तरह से। नाउ वी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 रुपये में 12 घास के गट्ठे हों तो 1280 रुपये में कितने घास के गट्ठे मिलेंगे। इफ़ 600 रुपीज़ बाय 15 bunches of feed, how many will 1280 रुपीज़ बाय। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि 600 रुपये में 15 घास के गट्ठे आते हो तो 1280 रुपये में कितने गट्ठे घास के गट्ठे में मिलेंगे। ठीक है, सो लेट द 1280 रुपीज़ बाय एक्स बंचेस ऑफ कैटल फीड। यहाँ पर फर्स्ट किया हमने कि 1280 रुपये में एक्स घास के गट्ठे मिलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट किया कि 1280 रुपये में एक्स घास के गट्ठे मिलते हो। सो घास के गट्ठों की कीमत और इनकी तादाद जो है तो मुस्तकिम तनासुब में है ना। द कॉस्ट ऑफ द कैटल and the number of bunches of cattle feed are in the direct proportion. Okay, so 600 upon 15 is equal to 1280 upon x. So multiplying both the side by 15x means यहाँ पर तरफेन को जो है तो 15x से ज़रब करने पर हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, 600x is equal to 1280 into 15। ठीक है, अब तरफेन को जो है तो हम यहाँ पर 600 से तकसीम करते हैं, है ना, डिवाइडिंग द बोथ साइड्स बाय 600, सो यू विल गेट हेयर x इज इक्वल टू 1280 इंटू 15 अपॉन 60 upon 600, so you will see that this 0 and this 0 will cancel, 15 ones are 15 and 15 fours are 60. Okay, thereafter you will see that 12 threes are 4 threes are 12 and 2 twos are 4. Okay, sorry, 4 twos are 8, so here we'll get x is equal to 32. ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि घास के जो है तो 32 गट्ठे है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि 32 bunches of cattle feed will be
here. Okay, like this. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है फॉर 9 cows 13 kg 500 gram of food supplement are required every day and the same proportion how much will be needed for 12 cows। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोज़ाना 13 किलोग्राम 500 ग्राम इजाफी खुराक 9 गाय को दरकार हो, तो इस तनासुब से 12 गाय को कितनी खुराक दरकार होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि 12 गायों को x किलोग्राम इजाफी खुराक की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गायों की जो तादाद और इजाफी खुराक की मकदारें जो है तो मुस्तकीम है ना। सो लेट द काउस नीड x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट, so the number of cows and the quantity of food supplement are in direct proportion. Okay, so here the step we are supposed to take is 9 upon 13.5 is equal to 12 upon x. Now we are doing here multiplying the both sides by 13.5x. okay, so we'll get here like this, 9x is equal to 12 into 13.5। ठीक है, तरफेन को 13.5x से ज़रब करने पर। ओके, सो नाउ डिवाइडिंग द बोथ साइड बाय 9, so you will get that x is equal to 12 into 13.5 upon 9। okay, so you will see here that after doing the solution here you will get the answer x is equal to 18। okay, like this। यानी हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि 18 किलोग्राम इजाफी खुराक जो है तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत है ना। so 18 kg of food supplement required here। ठीक है, now the next question is on your screen। 12 quintal soybean, the cost of 12 quintal of soybean is 36,000 rupees। how much will 8 quintals cost। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों के 12 क्विंटल सोयाबीन जो है तो 36,000 रुपये में मिलता हो, तो 8 क्विंटल सोयाबीन की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले फर्स्ट करना है कि सोयाबीन की कीमत जो है तो x रुपये है ना। वी आर सपोज टू अज्यूम इट। ओके, और सोयाबीन का वज़न और इसकी कीमत मुस्तकिम तनासुब में है। ओके, तो लेट द cost of the 8 quintals of soybean be x here। okay, the weight of the soybean and its costs are in डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का वज़न और इसकी कीमत जो तो मुस्तकीम तनासुब में है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे 12 upon 36,000 इज इक्वल टू 8 upon x। सो यू विल सी देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 36,000 x, so you will get here the step like this, 12x is equal to 8 into 36,000। ठीक है, तरफेन को 36,000 x ज़ैब करने पर हमें यहाँ पर स्टेप इस तरह से हासिल होगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सो इन द नेक्स्ट स्टेप डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 12, तरफेन को जो है तो 12 से तकसीम करने पर हमें यहाँ पर स्टेप किस तरह से मिलेगा, x इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000 अपॉन 12। ओके, तो इसको मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर, 12 का 12, 12 तिया 36 और 3 0 जैसे हैं वैसे लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3000 मिलेगा। ओके, सो 8 इंटू अगर 3 करते हैं हम तो यहाँ पर कितना मिलेगा 24।
सो x इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 24,000। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि 8 क्विंटल सोयाबीन की कीमत जो है तो 24 रुपये होगी। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पर हम जो है तो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देख रहे हैं बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 2 मोबाइल्स is 16,000. How much money will required to buy 13 such mobiles? यहाँ पर हमें देखना है कि अगर 2 मोबाइल की कीमत 16,000 रुपये हो तो 13 मोबाइल ख़रीदने के लिए कितने रुपए दरकार होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि हमने फ़र्ज़ किया कि 13 मोबाइल की कीमत जो है तो x रुपये है। कितनी है? x रुपये है। तो द सोल्यूशन let the cost of 13 mobiles be x. Okay, so the number of mobiles and their cost are in direct proportion. Okay, यहाँ पर मोबाइल की तादाद और इनकी कीमत मुस्तकीम तनासुब में है। ओके, तो you will see that the 2 upon 16,000 is equal to 13 upon x. ठीक है, so you will see here that multiplying the both side by 16,000x you will get the step here 2x is equal to 13 into 16,000. ओके, यहाँ पर तरफैन को हमने क्या किया है, तरफैन को हमने यहाँ पर 16,000x से ज़ब्त किया है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से स्टेप मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफैन को अगर हम यहाँ पर जो है तो 2 से तकसीम करते हैं, है ना, dividing both the sides by 2, so you will get here x is equal to 13 into 16,000 upon 2. Okay, so after doing the calculation you will get here the answer 1,04,000. ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि 13 मोबाइल की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 1,04,000 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि 13 मोबाइल की जो कीमत होगी वो होगी 1,04,000 रुपये। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो सवालात हमने आपके सामने रखे हैं इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और इसे हल करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।